ठीक हो गया। इन PDF एंड वर्ड फॉर्म, इन पावर पॉइंट फॉर्मेट। एडवांस डेटाबेस बुक्स, ये बेसिकली मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो मैं फॉलो करवाता हूँ अपनी क्लासेस के अंदर। इसी बुक के अंदर फर्दर एडवांस टॉपिक्स हैं जहाँ से मैं आपके लेक्चर्स को प्रिपेयर करूँगा। प्लस अगर कोई डाटा वेयर हाउस से प्रिपेयर होगा मटेरियल तो वो मैं आपको बता दूंगा, और सॉफ्टवेयर में सारे बुक्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मैं कोई डाटा नेक्स्ट जनरेशन डाटा बेसिस से कोई चीज़ ऐड ऑन करता हूँ आपके स्लाइड्स में तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। मतलब लेक्चर में मेंशन होगा कि बुक में किस पेज नंबर से मैंने ऐड किया। और डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का भी ऐसे ही। तो ये हमारी बुक्स हैं जो हम फॉलो करेंगे इन एडवांस डेटाबेस सिस्टम्स। लेक्चर मैं भी आपसे शेयर करता हूँ। Okay, Mohsin has declined our meeting. अच्छा, okay. Today is 16th September. You can raise your hands to ask any question. And this is advanced database class of D section. आज के हमारे इसमें we will cover our overview of introduction database system concepts and introduction to advanced database systems. So let's start from our PowerPoint slideshow. Okay, जी. So welcome to Namal डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस। छुट्टियों के बाद आप कॉम से गए और नमल में आ गए हैं। सो दिस इज माय ऑफिशियल ईमेल आईडी एंड दिस इज माय पर्सनल ईमेल आईडी। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेडिंग पॉलिसीज 8% फॉर क्विज़ेस, असाइनमेंट 4%, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड नॉलेज प्लस क्लास बी अगर इज आल्सो 8%। सो 20% आपका सेशनल हो गया, मिड टर्म इज 30% एंड फाइनल टर्म इज 50%। As per my teaching standard, I always share course details. This is our course outline. We have to cover this course outline by Hooker group in this semester. Overview of ideas is concise, related to the basics of databases and the normalization process from zero to third normal form, because we have to cover the advanced normal forms and then higher normal forms in next 2 weeks. So I have covered normalization in overview of introduction to database systems. You have already covered from zero to third normal form. Then we will continue to higher and advanced normal forms. Then after that we will cover database server architecture, 3-tier, application partitioning, data warehousing, basic concepts, architecture of data warehouse, ETL process, OLAP, data mining, role of database administrators, database security, and so on. Last week will be our presentation week. I will assign some advanced topics related to these terms, which you have already covered. So you have to present so uh, maybe a research paper in presentation on data warehouse, data mining, and data administration. So we will discuss these presentations after midterm. Your work in this class must be your own. Don't try to copy other assignments or quizzes, even paper as well. Attendance will be taken within 10 minutes from next class, either it is online or offline. So these are the books we are using in this advanced database system subject. So can you please recall the basic concept of database system, data and information? What is data and information? What is meant by data and information? Anyone from class? Hello, beta. Anyone from class can differentiate between the data and information? Mohammad Zishan. Okay. Zishan, I am going to unmute my mic. सर सर आपने कहा है कि अभी मतलब अब जो पेपर्स होंगे वो भी मतलब आप कॉपी ना करें, तो इसका मतलब पेपर ऑनलाइन जो हो रहे हैं या फिर इसमें क्या है सर? क्या कह रहे हैं आप बेटा? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चलें वजाहत वजाहत है माइट पे।
वजह तो आपके पास तो माइक ही नहीं है, आप कैसे बात करोगे? हेलो, माय क्वेश्चन इज differentiate between data and information. Anyone from class? अभी जो स्टूडेंट था उसको क्या प्रॉब्लम हुआ है? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई बेटा। ओके, मोमिना आस्क टू अनम्यूट। फिर डाटा जो है वो हमारे पास फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं, और उनका जो ग्रुप ऑफ डाटा होता है वो इंफॉर्मेशन होती है। डाटा क्या होता है? स्टैट आ रहे होते हैं फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स जो डिफरेंट जो फैक्ट्स होते हैं, हाँ, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन होती है कि ग्रुप ऑफ डाटा, मतलब हम डाटा को एक सीक्वेंस दे देते हैं तो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। डाटा इज अ यूनिट, एक सिंगल, और उसको हम सीक्वेंस डाल दें तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। कोई एग्जांपल आप दे सकती हैं अपने इस डेफिनेशन को सपोर्ट करने के लिए? फिलहाल दिमाग में नहीं आ रही। हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एम्बिगुइटी है उसमें। मैं अगर समझना तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन आपकी एग्जांपल साथ जैसे हमारे support- पास डाटा रॉ होता है ना, मतलब कि हमने उसको एक सीक्वेंस नहीं दी होती है, सिंगल एंटिटीज अगर हम रख दें तो वो एक रॉ डाटा है, अगर उसको हम एक सीक्वेंस बना दें तो हाँ, इंफॉर्मेशन बन जाती है। अगर हम सीक्वेंस की बजाय ऑर्गेनाइज्ड कह दें, टर्म यूज कर लें, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सही। organized collection of data is termed as information. Sequence is something else. सीक्वेंस भी ये है ना कि हम लोग डिफरेंट एंटिटीज को अगर हम एक उसको हम लोग सीक्वेंस एज देन उनको हम प्रॉपर शेप दे दें, ऑर्गेनाइज ही कर दें, वो है नहीं सीक्वेंस। हाँ हाँ, ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया हूँ, लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज टर्म बेसिकली ज़्यादा सुटेबल नहीं इस स्पेसिफिक सही डिफरेंशिएशन। है, आई गॉट इट। हाँ बेटा। सो जैसा कि मोमिना ने भी बताया अभी, और मैंने भी उसको फर्दर फाइन ट्यून किया डेफिनेशन को, we can say that the raw facts and figures that are not useful in specific environment, in specific application or data, and useful information that is organized to serve specific purpose is termed as information. Okay. What is the difference between the flat file and relational database systems? Anyone from class other than Momina? Okay. Uh, okay, Rafia, can you differentiate between these two terms? फ्लैट जो होती हैं वो डाटा जो होता है वो हमारे पास उसमें कॉलम्स वगैरह में होता है, लाइक उनके स्प्रेडशीट्स बनते हैं फ्लैट। और जो रिलेशनल डाटा जो फ्लैट फाइल होते हैं ना उनको हम लोग इंटरनल हायरार्की में भी यूज करते हैं, इस तरह का कुछ। सर इतना ही पता है मुझे। चलिए ठीक है अरसलान, मैं आपको अनम्यूट का कह रहा हूँ। सर जो फ्लैट फाइल्स होती हैं इसमें जो स्टोर डाटा होता है वो हम सिंगल टेबल में कर सकते हैं स्ट्रक्चर हम अपने डाटा को, जबकि जो रेशनल डाटाबेस होता है उसमें हम मल्टीपल रेफरेंसेस डाल सकते हैं अपने रिकॉर्ड में, टेबल के अंदर जो भी हमने रिकॉर्ड डाला है उसके अंदर मल्टीपल रेफरेंसेस डाल सकते हैं। थोड़ा रेशनल डाटाबेस में जो फ्लैट डाटाबेस जो होता है सर उसमें हम स्टोर करते हैं सिंगल टेबल को, उसके अंदर मल्टीपल टेबल नहीं आ सकते, सिंगल टेबल स्ट्रक्चर होता है जो फ्लैट डाटाबेस का होता है। और जो आपके पास रैशनल डाटाबेस होता है सर उसमें मल्टीपल रेफरेंसेस हम अपने रिकॉर्ड में डाल सकते हैं एक टेबल के अंदर। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा गलत बता रहे हो बेटा। आपने फ्लैट फाइल ठीक बता दिया, लेकिन रिलेशनल के अंदर ये होता है कि
मल्टीपल टेबल्स हम बना सकते हैं जिनके अंदर हम सर रिकॉर्ड। रिलेशनल डेटाबेस में भी हो सकता है कि हमारा डाटा मोर फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और हम इसे डिज़ाइन में इंटरव्यू नहीं है वगैरह बेटा, कर सकते फ्लेक्सिबल कोई टर्म नहीं है। हैं। मतलब सर वो फ्लैट इस तरह से कि हम उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और नहीं नहीं, मेंटेनेंस वगैरह। गलत बता रहे हैं। चलो मैं अभी, ओके शेरियर आपने हैंड रेज किया हुआ, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर, मैंने यही बताना था जो अरसान भाई ने बता दिया, फ्लैट फाइल वर्सेस रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम का। इसमें डिफरेंस ये होता है सर कि जो फ्लैट फाइल है उसमें सिंगल टेबल बेस्ड होता है बेसिकली, और जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है उसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं। और मल्टीपल टेबल्स जब आ जाते हैं तो हम उसमें फिर क्रॉस रेफरेंसिंग भी कर सकते हैं, लाइक फॉरेन की वगैरह, और आपस में उनके रेफरेंसेस बना सकते हैं। ये डिफरेंस है मल्टीपल टेबल और सिंगल टेबल वाला। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ अभी शेरियर, जी जी। ऑप्टिमाइज्ड डेटाबेसेस कौन सी होती हैं? क्या वो फ्लैट फाइल सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड हो सकता है आपका, या रिलेशनल जो है डेटाबेस सिस्टम आपका ऑप्टिमाइज होता है? सर ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइजेशन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में मेरे ख्याल में बेहतर होगा। ओके, वेरी गुड शेरियर, काइंडली म्यूट थैंक एंड यू। लोअर योर हैंड। ओके जी, बिल्कुल ठीक बताया। देन हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच है, डेटाबेस अप्रोच है। फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच में आपने आईडीएस के अंदर देखा था कि हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल डेटाबेसेस बैकएंड पे बना रहे होते हैं और सेम रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है मल्टीपल डेटाबेसेस में। और डेटाबेस अप्रोच में बैक एंड पे एक ही डेटाबेस होती है जिसके अंदर हम फर्दर मॉड्यूल्स बना लेते हैं, रिकॉर्ड हम रिलेशनल डेटाबेस के थ्रू अंदर रिलेट कर लेते हैं। देन आप इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको फर्दर रिकॉल हो जाएगा चीज़ें। नॉर्मलाइजेशन एंड अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म हम कवर करेंगे आप जब यूनिवर्सिटी आएंगे इसी वीक के लेक्चर में ना। बाकी ये बेसिक कॉन्सेप्ट में स्टार्ट है तो हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब बात आ जाती है इंट्रो टू एडवांस डेटाबेस सिस्टम्स की। ये तो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये करने के बाद आप इस एडवांस डेटाबेस में फर्दर कैसे करेंगे। मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद ही तो आप एडवांस नॉर्मल फॉर्म्स जो हैं वो कर सकते हैं। ओके, समवन है वजाहत, आपको ने हैंड रेज किया है अभी माइक में। ओके, शायद बाय मिस्टेक आपने कर दी है। ओके, why you should take this course? Likewise, we have discussed in Introduction to Database Systems. Facebook has optimized and well-related relational database, and Friendster has non-optimized database. So Friendster is not a hit and Facebook is a hit application till today. ओके, ये हमने डिस्कस किया था आईडीएस के अंदर। सम बेसिक डेफिनेशन और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज कलेक्शन इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट। ये भी हमने डिस्कस दोबारा भी किया, समराइज किया तमाम लेक्चर को। अभी डाटा एंड इंफॉर्मेशन आ गया आपका। ये देखें, अगर ये टेबल विदाउट दिस कॉलम नेम्स हो तो हमें आइडिया नहीं होगा कि ये क्या इंफॉर्मेशन है इस टेबल के अंदर। देन इसके बाद हमारे पास वो कढ़ाई गोश्त वाली एग्जांपल आपको याद होगी, हमने क्लास में ये किया था कि हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपने डेटाबेस सिस्टम को देख रहे होते हैं और यूज़र डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। डेवलपर का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है किसी भी सिस्टम को देखने का, और जो यूज़र होता है जिसने उस सिस्टम को यूज़ करना होता है उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। देन डीबीएमएस क्या होते हैं हमारे पास, डिफरेंट इंजन्स होते हैं टू स्टोर डेटाबेस। अब यहाँ पे मैंने ऐड ऑन किया टेरा डाटा। Teradata is an advanced system that you will learn in MPhil or in even and you can do research work in by using Teradata. This is used to gather information of a company and it will be stored and locked. It can't be erased. Tableau or Power Business Intelligence tools are used to show the reports. Which type of reports? For example, a company Zong has फॉर एग्जांपल एक जोंग की कंपनी में कुछ सेल्स हुई हैं, जनवरी के मंथ में कितना हुई है, फरवरी में कितना हुई है, और उनके रिपोर्ट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर कि क्या
फर्दर एक्शन लिए जाएं कि जनवरी और फरवरी में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस को रिमूव किया जाए और सेल्स को मैक्सिमम किया जाए। ओके, so Teradata is advanced tool that will be used in MS, that is to store data. DBMS आपको पता है ये एक टूल है, सिमुलेटर है जो कि यूज होता है डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। ओरेकल, SQL सर्वर, MySQL सर्वर ये सारे किए हैं, Teradata ये सारे किए हैं आपके DBMS इंजन से। डेटाबेस सिस्टम is a combination of database and DBMS. फ्लैट फाइल एक ही टेबल उसमें कॉलम इंक्रीज करते जाएं, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन these columns because we have only one table and we have multiple columns. There is a repetition of data, huge repetition of data in flat file, and it is not well organized. Relational database system we have multiple or more than two number of tables in specific application. In relational database system, we relate these tables with each other by using primary and foreign key concepts. यहाँ से आपको ज़्यादा इजी समझ आएगा। ये फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल डेटाबेस हो गया। देन हमारे पास आ जाता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स, जो मैंने आपको बताया कि मल्टीपल डेटाबेस बैकएंड पे स्टोर हो रही हैं। एंड इन database approach we have single database in the backend. In file processing system we have duplication of data and it is vulnerable to inconsistency because we have to register same registration number in multiple different databases. In a registration data for library application, for examination and registration application. And we have some database environment advantages, that is data sharing, control, redundancy, data independence and data integrity. Data are independent of each other, so change in one has no or minimum effect on another. For example, अगर आपकी जीपी अपडेट हुई है तो उसका कोई इफेक्ट आपके नाम पे नहीं होगा, फर्दर और डिटेल्स पे नहीं होगा। एंड देन हमारे पास नॉर्मलाइजेशन का ब्रीफ ओवरव्यू आता है। तो इंशाल्लाह ये हम जो है अपनी क्लास के अंदर कवर करेंगे नॉर्मलाइजेशन से ना। अच्छा, मैं जो अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एलएमएस के ऊपर मैं डाटा अपडेट करूँगा। अभी आप एलएमएस पे लॉगिन नहीं हुए तो मैं भी क्या करूँगा, डाटा आपको जूम पे ही प्रोवाइड कर दूंगा, बट ये डाटा एलएमएस पर भी मैं अपलोड कर दूंगा और फर्दर सारा डाटा आपको मिलेगा एलएमएस के ऊपर। क्लास होगी जूम चैनल के थ्रू। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को बेटा? सर हमने एलएमएस की वो वीडियो देखी थी, उसमें हमें चाहिए होता है लॉगिन के लिए आपका एड्रेस चाहिए होता है और पासवर्ड चाहिए होता है, और वो हमें कब अलाउ होगा? अच्छा, इस बारे में आप मेरी बात सुन लें। मैं CS28A का जो हूँ कोऑर्डिनेटर हूँ, सॉरी क्लास इंचार्ज हूँ। तो उनको मैंने कि मैंने पासवर्ड किसी से कोई शेयर नहीं किया। द रीज़न इज सेम पासवर्ड आप सबके हैं। कोई किसी की प्रोफाइल में जाके फिर कोई हरकत कर दे तो वो अच्छी बात नहीं है। आपने जो ईमेल एड्रेस GR और GR के थ्रू प्रोवाइड किए थे वही आपका ईमेल एड्रेस वहाँ पे रजिस्टर हुआ है। नंबर 1 नोट कर लें। उस ईमेल एड्रेस से आप जाएंगे LMS पर और फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। आपका नया पासवर्ड वगैरह की डिटेल्स, लिंक वगैरह आपकी ईमेल आएगी। उस ईमेल के थ्रू दोबारा जाके आप नया पासवर्ड सेट कर देंगे और उस पासवर्ड से लॉगिन हो जाएंगे। 28A तैयब CR है, उसने ये प्रोसेस कल कर ली है। उन्हें मैंने पासवर्ड नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन विदाउट पासवर्ड उनको तरीका बता दिया, वो सारे लॉगिन हो गए हैं LMS के ऊपर। तो आप लोग भी वही प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं। सर आपको